Good morning, everyone. We will be doing this sum, which is there in front of your screen. Ajay and Vijay are partners who share profits and losses in the ratio of 2 is to 3 in a business. Means there are two partners of one business, Ajay and Vijay, जो profit और losses को 2 is to 3 रेशो में डिवाइड करते हैं. फिर आगे फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है. इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस Kailash and Manish are partners who share profits and losses equally. Means there are two businesses. In one business, Ajay and Vijay are partners who share profits in the ratio of 2 is to 3, and a similar type of another business where Kailash and Manish are partners who share profits and losses equally. Full stop. It is agreed that both the firm have to amalgamate into one. Means Ajay, Vijay, Kailash, Manish are combining their business into one, are amalgamating their business into one. Getting my point? Ajay, Vijay, who have a different business, 2:3 में प्रॉफिट शेयर करते थे, एंड वन मोर बिजनेस ऑफ कैलाश एंड मनीष जो इक्वली प्रॉफिट लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे. दे बोथ their both business gets amalgamated into one. From when? From 1st April 2014 ऑन 31st मार्च. ये होने के बाद फुल स्टॉप. कौन से डेट में अमालगमेशन हुआ? ऑन 1st April 2014 amalgamation happened, and full stop. On 31st March 2014, on 31st March 2014, the financial position of both the firms is as under. The financial position of both the firms is as under. Now see, हमें liability, let us read the liability first. Capital is given. Ajay 1,04,000, Vijay 91,000. Kailash ka capital is given. Manish ka capital is given. General reserve is given. जनरल रिजर्व इज द प्रॉफिट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर्स में. एवी का अजय विजय को, के एन एम का कैलाश एंड मनीष को. देन वी हैव क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल एंड लोन फ्रॉम एसबीआई. लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई. ऑल द थ्री आर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. Then when we come to the asset side, there is goodwill, machinery, furniture, motor car, stock, debtor, bill receivable, cash and bank balance. Cash and bank balance. Now let us come to the question. The firms are amalgamated on the following terms. The firms are amalgamated on the following terms. Creditors of both the firms are to be taken at a discount at 10%. Means creditor जो 1,02,700 है ए एंड बी का, उसमें 10% डिस्काउंट करना है. एंड सेम वे 74,100 में भी 10% माइनस करना. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट मीन्स लेस करके लिखना है. creditors are giving discount, so we will minus 10% and remaining जो अमाउंट है 90% वो हम लोग लिखेंगे. सो इसके बाद मशीनरी, नेक्स्ट पॉइंट दे से मशीनरी इज सब्जेक्ट टू 5% depreciation of both the firms. मतलब 5% depreciation निकालना है दोनों फर्म्स का. दोनों फर्म्स का मशीनरी पे वी विल हैव टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन. फिर मोटर कार इज टू बी एप्रिशिएटेड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू. डेप्रीसिएशन मतलब लेस, तो एप्रिसिएशन मीन्स ऐड.
we have to increase the value of motor car by 10% of both the firms. मतलब 1,87,200 plus 10%, 1,24,800 plus 10%. हमें दोनों में 10% ऐड करना पड़ेगा because appreciation has happened. Then furniture, this is important. Furniture of both the firms not to be taken over by new firm, means new firm is not going to take over this furniture. So will this come in the PC? Will this come in the PC? पर न्यू फर्म इज नॉट गोइंग टू टेक ओवर दिस फर्नीचर है, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको. वी टेक ओनली दोस असेट्स दैट न्यू फर्म इज गोइंग टू टेक ओवर. नाउ फर्नीचर इज ऑफ बोथ द फर्म्स इज नॉट taken over by the new firm. Not taken over means this will not come in the purchase consideration. इसका पैसा नया फर्म नहीं देगी because वो लोग लेके ही नहीं जा रहे. Next one, stock is to be appreciated by 20% of both the firms. तो दोनों firms के stock में प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. स्टॉक इज ऑल्सो एप्रिशिएटेड. सी यहाँ पे दिया है ना एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन मीन्स ऐड करना पड़ेगा. सो वी विल ऐड. And goodwill of ANV is valued at 62,400. goodwill का भी नया वैल्यू दिया है. ANV is 62,400 and KNM is 39,000. KNM Kailash and Manoj na, there it is 39,000. 39,000. So capital of the new firm, this is one thing new we will be doing in this sum. This point is new we will be doing in this sum. So they say capital of the new firm means amalgamation होने के बाद जो नया firm create होगा उसका capital is 9,36,000. means the new firm which will be created after amalgamation उसका capital has been given, उसका total capital has been given 9,36,000 to be adjusted according to the new profit sharing ratio. means question में new profit sharing ratio भी रहेगा. so this next point, this one point मैंने read नहीं किया. any adjustment to be made in cash, वो क्या है I will explain you. The new, पहले let us see what is the new profit sharing ratio. means the new profit sharing ratio is, the new profit sharing ratio is Ajay 3/10. The new profit sharing ratio is Ajay 3/10. मीन्स अगर 10 शेयर करेंगे प्रॉफिट का तो अजय को 3 शेयर मिलेगा, विजय को 2 शेयर मिलेगा, कैलाश को 3 शेयर एंड मनीष को 2 शेयर. सो वी हैव गॉट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सबको ऐड करोगे तो 10 आएगा. 3 + 2 + 3 + 2 विल बी 10. मीन्स 3/10, 2/10, 3/10 and 2/10 are the new profit sharing ratio. 9,36,000 को हम ये रेशो में डिवाइड करेंगे तो हमें चारों का नया कैपिटल मिलेगा. गेटिंग माई पॉइंट. टोटल कैपिटल इज 9,36,000 टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. मीन्स 9,36,000 इंटू 3/10 किया तो अजय का न्यू कैपिटल मिलेगा. 9,36,000 इंटू 2/10 किया तो विजय का, 3/10 किया तो कैलाश का, 2/10 किया तो मनीष का. बट whatever extra will be there, मतलब अगर सपोज अजय का टोटल कैपिटल अभी बिजनेस में 3 लाख है लेकिन उसका न्यू कैपिटल इज 2 लाख, तो 1 लाख एक्स्ट्रा रहेगा तो दैट विल बी एडजस्टेड इन कैश. कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो कैश में उसको मिल जाएगा. कुछ उसको देना रहेगा तो वो
हम लोग को वापस करेगा. तो एनी एडजस्टमेंट विल बी देयर, इट विल बी इन कैश. ये मैं और अच्छे से वी विल सी व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द सम. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दे हैव टोल्ड you are required to close the book of accounts of the firm and draw the balance sheet after amalgamation. So now let us, without wasting the time, start the purchase consideration. मतलब first step is always purchase consideration. तो यहाँ पे लिखेंगे A, all assets taken over by new firm, taken over by new firm in what value? Revised or book value. Revised or book value. All assets taken over by new firm in revised value or book value. तो उसमें सबसे पहले asset कौन सा दिया है यहाँ पे? Goodwill. Goodwill का नया value is given in the question. So I will write goodwill. So goodwill का नया value सी this point F point में दिया है. A and V का goodwill is 62,400 and K and M का goodwill is 39,000. दोनों को फटाफट keep your calcies in front of you. Add both 62,000 and 39,000 कितना आ रहा है? Give the answer to me quick. See, we don't have time. मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए wait करती रहूंगी. Then we don't have much time. 62,400 plus 39,000. Add both. How much are you getting? 1,01,400. Correct. Now सेकेंड वन, आफ्टर गुडविल कौन सा असेट है? देखो आफ्टर गुडविल कौन सा असेट इज गिवन? आफ्टर गुडविल मशीनरी इज गिवन. मशीनरी पे 5% डेप्रीसिएशन करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है? देखो 1,40,400. मशीनरी इज 1,40,400 माइनस 5% करो. minus 5% करो. how much are you getting? 1,40,000, 1,40,400 minus 5%. लेस करो 5%. कितना डेप्रीसिएशन है? आर यू गेटिंग 1,33,380. 380. 1 minute. 380. एंड दूसरे का क्या है? दूसरे का what is the value of the other machinery? 1,09,200. 1,09,200 में भी 5% लेस करो. लेस करो 5%. what are you getting? 1,09,000 का हमें मिल रहा है 1,03,740. कैसे मिला? I'll show you again. 1,09,200 माइनस 5%. अब ये दोनों को ऐड करना है. दोनों को ऐड करना है तो वी गेट 2,37,120. दोनों को ऐड करने पे. नाउ आफ्टर मशीनरी, which is the next asset given, after machinery we have furniture. But furniture के बारे में important information is there. Furniture of both the firms is not taken over by the new firm. Not taken over मतलब it will not come in the PC. उसके बाद वी हैव मोटर कार. मोटर कार 10% वैल्यू ऐड करना है. सो मोटर कार करो 1,87,200 प्लस 10%. मोटर कार 1,87,200 प्लस 10%. कितना होता है मोटर कार का? 2,05,920. Correct. Very good, Kiran. Same way, we have to add 10% in the other also. 1,24,800 plus 10% करो. 1,24,800 plus 10%. You will get 1,37,200.
37,280 करेक्ट, वेरी गुड किरण. नाउ दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो. 3,43,200, 3,43,200 भी आ रहे हैं ना, या इट इज 3,43,000, 3,43,200 मिल रहा है मुझे. एम आई करेक्ट? दोनों को ऐड करके देखो वेदर यू आर गेटिंग दिस आंसर ओनली. 280, it is 200 रेशमा. 3,43,200. सो इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वन? स्टॉक. स्टॉक के बारे में क्या बोला गया है? स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%. स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%. सो 88,660 में 20% ऐड करो. स्टॉक लिखना है एंड स्टॉक का क्या है? स्टॉक 20% ऐड करना है. सो 20% ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 1,06,392. करेक्ट, वेरी गुड. नाउ हमें दूसरा वैल्यू क्या दिया? लेट अस सी व्हाट इज द अदर वैल्यू ऑफ स्टॉक जिस पे 20% ऐड करना है. 76,700. 76,700 प्लस 20%. 76,700 plus 20%. How much is it coming? Plus 20%. It is coming 92,040. 92,040. दोनों को ऐड जब करेंगे तो हो जाएगा 1,98,432. 98,432. दोनों को ऐड करो, यू विल गेट दिस आंसर. नाउ स्टॉक के बाद वी हैव डेटर्स. डेटर्स का कुछ आरडीडी कुछ भी नहीं बोला है. बिल रिसीवेबल का भी कुछ भी नहीं बोला है. सी कैश बैंक का भी कुछ भी नहीं बोला है. जो असेट का नया वैल्यू नहीं दिया उसका हम क्या लिखेंगे? उसका हम ओल्ड वैल्यू लिखेंगे. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डायरेक्टली कॉपिंग बिकॉज इनका नया वैल्यू नहीं दिया है. इनका नया वैल्यू नहीं दिया. आई मैं करेक्ट? किसी का भी नया वैल्यू नहीं दिया. इनका किसका भी नया वैल्यू आरडीडी कुछ भी दिया नहीं है ना. नथिंग टोल्ड अबाउट आरडीडी एनीथिंग. सो हम क्या करेंगे? जो ओल्ड वैल्यू है वो ही हम लोग लिख लेंगे. वॉट एवर ओल्ड वैल्यू इज देयर. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है देखो, it is revised value if given, if not given revised value it is book value. अगर revised value नहीं दिया तो क्या कौन सा वैल्यू लेना है? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट वैल्यू. इफ न्यू वैल्यू इज नॉट गिवन, ओल्ड वैल्यू. तो ये सबको अभी ऐड करके बताओ क्या आ रहा है. ऐड करके बताओ हाउ मच आ रहा है. हाउ मच अमाउंट आर यू गेटिंग? ये है 1,80,000, 1,85,380. आर यू गेटिंग दिस आंसर? एक एक करके मुझे ऐड करके बताओ. 39, ये हो जाएगा 59,020. एंड कैश बैलेंस क्या आया? कैश बैलेंस दोनों को ऐड करके आया कितना? कैश बैलेंस भी बताओ. 13, ये हो जाएगा 23,920. एम आई करेक्ट? 23,920. सारे असेट्स लिख लिए तो टोटल करेंगे तो वी विल गेट द टोटल करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ ए. सेम वे हमें क्या करना है? सेम वे हमें यहाँ पे लेस करना है ऑल एक्सटर्नल liabilities taken over by new firm in revised or book value. सो अभी देखेंगे हमारे पास कौन सा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. हमारे पास है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड लोन फ्रॉम एसबीआई. सो ये तीनों को लिखना है और नया वैल्यू नहीं दिया.
न्यू वैल्यू दिया नहीं तो वी विल टेक द ओल्ड वैल्यू. एंड वन मोर थिंग, हाँ, कोई असेट अगर नया कंपनी नहीं लेके जा रहे तो दे विल से, जैसा फर्नीचर का बोला है, देखो नहीं लेके जा रहे, व्हेन नथिंग इज टोल्ड मतलब लेके जा रहे इन द ओल्ड वैल्यू. कुछ बोला नहीं है कि लेके जा रहे कि नहीं लेके जा रहे, उसका मीनिंग है कि दे आर टेकिंग द लाइबिलिटी या टेकिंग दोस असेट इन द बुक वैल्यू. बुक वैल्यू में लेके जाएंगे तो नया वैल्यू दे विल नॉट से. तो मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर लिया सारा वैल्यू, फिर से पूरा एक एक लिखने से अच्छा, दैट विल सेव अवर टाइम. दिस विल सेव अवर टाइम, राइट. सो क्रेडिटर्स दोनों ऐड करो, कितना आ रहा है, क्रेडिटर्स ऐड करो 9. एक मिनट, क्रेडिटर्स का तो नया वैल्यू है ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया. क्रेडिटर्स को तो डिस्काउंट देंगे करके बोला है. फर्स्ट पॉइंट, creditors to be taken at 10% discount. So creditors है 1,02,700 minus 10% करो, 10% creditors, that is 10% discount. सी ऐसा अगर हम भूलेंगे तो हमारा पीसी रॉन्ग होगा, फिर आगे का पूरा सम विल बी रॉन्ग. सो क्रेडिटर्स पे माइनस करो, कितना वैल्यू आ रहा है, इट इज कमिंग 92,430. करेक्ट किरण, 92,430. सेम वे दूसरे कंपनी का 74,100 माइनस 10% डिस्काउंट कितना आ रहा है, 66,690. आर यू गेटिंग, 66,690, 66,690. इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी 1,59,120. बिल्स पेबल का नया वैल्यू नहीं दिया, सो इट विल बी 85, सॉरी, it will be 85. How much it will be, 85 800, 85 800. सेम वे 2,47,000 और 2,08,000 को ऐड करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, 4,55,000. नाउ ऐड करो, इसका भी टोटल निकालो, टोटल बी क्या टोटल आ रहा है, लाइबिलिटी का 3,90,130, ये साइड का 3,09,790. ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, टेल मी. असेट का क्या आ रहा है, वेरी गुड करके रखा है. असेट का आ रहा है 6,53,952. करेक्ट, 6,53,952. और दूसरे साइड का 4,94,520. वेरी गुड रेशमा. सो दोनों का टोटल नहीं किया, दोनों का टोटल क्या आ रहा है, असेट का इट इज 11,48,472. होप दिस इज करेक्ट, होप दिस इज करेक्ट. लाइबिलिटी का क्या आ रहा है, लाइबिलिटी का इट इज कमिंग 6,99,920. होप दिस इज करेक्ट ना, I have not calculated. 3,90,130 plus 3,09,790. करेक्ट आंसर. सो अब लास्ट स्टेप क्या है, परचेस कंसीडरेशन. परचेस कंसीडरेशन कैसे मिलेगा, ए माइनस बी. सो व्हाट पीसी आर यू गेटिंग, 6,53,952 माइनस 3,90,130. आपको मिल रहा है पहले कंपनी का पीसी, यू आर गेटिंग एज 2,63,822.
2,63,822 एंड दूसरे कंपनी का कितना मिल रहा है? दूसरे कंपनी का 4,94,520 minus 3,09,790, you will get 1,84,730, 1,84,790. क्या किया? टोटल ऑफ ए से टोटल ऑफ बी माइनस किया, सो वी गॉट द पीसी, वी गॉट द परचेज कंसिडरेशन. दोनों को ऐड किया तो 4,48,552. वी हैव गॉट द पीसी. ये हमारा पहला स्टेप हो गया. अब हमारा दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है? हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म अकाउंट बनाना है. तो इसमें एक काम करते हैं, हम पहले ना एक चीज कर लेते हैं, वो है पार्टनर्स का बैलेंस पहले ही लिख लेते हैं, तो वो इजी हो जाएगा बाद में. पार्टनर्स का बैलेंस मतलब पार्टनर्स लाइबिलिटी है, पार्टनर्स कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. कैसे पता? लाइबिलिटी में आया पार्टनर्स कैपिटल एंड लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस. तो कितना अमाउंट है जरा देखो कैपिटल का. कैपिटल का अमाउंट लिखो, अजय का अजय में, विजय का विजय में, 72,800 एंड 65,000. सबका कैपिटल लिखो. क्या है? सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, जिसका जितना कैपिटल है वो लिखेंगे. अजय's कैपिटल इज 1,04,000, Vijay's capital is 91,000, Kailash is 72,800 and this one Manish is 65,000. सबका कैपिटल लिखा. अब देखेंगे कोई रिजर्व रहेगा तो वो रिजर्व भी तो पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए. इफ देर इज एनी रिजर्व दैट ऑल्सो हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स. सो गो टू द क्वेश्चन, सी इज देर एनी रिजर्व? हाँ, जनरल रिजर्व है 26,000 और 20,800. अब ये 26,000 अजय एंड विजय में डिवाइड करना है. कैसे डिवाइड करेंगे? क्या कोई रेशो दिया है? इज देयर एनी रेशो गिवन फॉर अजय एंड विजय? 2:3. 2:3 मतलब 2 + 3, 2/5, 3/5. तो 2/5 करेंगे, 2 + 3 is 5 ना. तो 26,000 इंटू 2/5 करो तो आपको मिल रहा है कितना? 10,400 मिल रहा है. 10,400. सो यहाँ लिखेंगे दिस वन विल गेट 10,400. 26,000 into 3/5 करो, you will, the other one will get, Vijay will get 15,600. Same way there is K&M में भी there is reserve 20,800. इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? K&M का प्रॉफिट शेयरिंग है इक्वल. इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? इक्वल है. इक्वल है मतलब डिवाइड बाय 2 करो. 20,800 डिवाइड बाय 2 करो. क्या आ रहा है? 20,800 डिवाइड बाय 2, तो इट विल बी 10,400. 10,400. सो हमने क्या किया? हमने ये स्टेप पहले ही कर लिया जहाँ पे हमने पार्टनर्स को उनका हिस्सा दे दिया, मीन्स उनका कैपिटल जो है दे दिया, उनको अगर कोई रिजर्व मिलना चाहिए तो वो भी दे दिया. अब हम लोग पीसफुली जाएंगे टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड इन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट हम क्या करेंगे? सारे असेट्स को ट्रांसफर करेंगे. ऑल असेट्स. वो नया फर्म लेके जाने दो, नहीं लेके जाने दो, ऑल द असेट्स हम ट्रांसफर करेंगे. तो मैं तो फटाफट करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी पेस्ट ऑल द असेट. बट व्हेन यू आर सॉल्विंग आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा. सारा असेट्स लिखा. अब क्या करना है? A&V में जो भी उसका अमाउंट, बैलेंस शीट वैल्यू, रियलाइजेशन में कौन सा वैल्यू लेना है? बैलेंस शीट वैल्यू, बुक वैल्यू. सो मैंने क्या किया? बैलेंस शीट में A&V का जितना भी असेट था ऑल आई हैव रिटन. एंड अभी K&M का भी
जितना भी अमाउंट है all we have to write. दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप. रियलाइजेशन में पहला स्टेप क्या है? सारे असेट्स लिखना है. कौन से वैल्यू में? बैलेंस शीट वैल्यू में. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? राइट ऑल द लाइबिलिटीज. राइट ऑल द लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज में बचा कौन सा लाइबिलिटी है? सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बिकॉज इंटरनल लाइबिलिटी तो पार्टनर्स को मिल जाता है. इंटरनल लाइबिलिटी इज पार्टनर्स कैपिटल, दैट विल कम इन द पार्टनर्स कैपिटल. जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, पार्टनर विल बी गेटिंग इट. सो व्हाट इज लेफ्ट आउट? एक्सटर्नल लाइबिलिटी. सो इसको कॉपी किया एज इट इज. एज इट इज हमने कॉपी किया. लोन फ्रॉम एसबीआई. एसबीआई इज एक्सटर्नल. एसबीआई जो है वो बैंक है और वो इट इज अ एक्सटर्नल लाइबिलिटी, नॉट इंटरनल. सो ये हो गया. जो अमाउंट दिया है बैलेंस शीट अमाउंट ही लेना है. सो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट अमाउंट वी विल राइट. एंड बाजू में ऑल्सो के एन एम ऑल्सो सेम वी विल कॉपी. सेम वी विल कॉपी. ये हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड द पीसी. पीसी किसका? नया फर्म का नाम नहीं दिया है. पीसी कौन देगा? न्यू फर्म विल गिव. दिस इज पीसी ड्यू. कौन देगा? नया फर्म. सो पीसी फ्यूचर में मिलेगा. और पीसी का अमाउंट क्या है? एक लाइन ऊपर दिया है, 2,63,822. 2,63,822. तो 2,63,822 लिखा. दिस इज ए एन बी का पीसी. और दूसरे कंपनी का पीसी क्या है? 1,84,730. पीसी लिख लिया. देखो पहला स्टेप क्या था? सारे असेट्स को ट्रांसफर किया, बैलेंस शीट वैल्यू. सारा लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया. नाउ व्हाट वी विल डू? क्या हम न्यू फॉर्म अकाउंट बना रहे? तो न्यू फॉर्म अकाउंट का बाई का ऑपोजिट हम टू में लिखेंगे. बाई का ऑपोजिट टू में टू रियलाइजेशन अकाउंट. टू रियलाइजेशन अकाउंट. और वही अमाउंट 263,822 लिख लेंगे. और 184,730 हमने सारा दोनों जगह पे पीसी का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया. डन. अब नेक्स्ट स्टेप पीसी रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज देयर एनी असेट नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म? इज देयर एनी असेट नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म? यस. अगर हम देखेंगे तो थर्ड पॉइंट में दिया है उसको हमने, सॉरी फोर्थ पॉइंट में इट इज गिवन दैट फर्नीचर इज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म. फर्नीचर नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म. तो फर्नीचर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा. वी हैव टू डिवाइड द फर्नीचर. सो यहाँ पे लिखेंगे बाई. किसको मिलेगा फर्नीचर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. किसको मिलेगा? फर्नीचर यहाँ है. फर्नीचर इज इन द डेबिट साइड. अब ये फर्नीचर को जब हम कैंसल करेंगे तो जिधर ऑपोजिट साइड में लिखेंगे. एंड कौन कौन पार्टनर है? देयर इज अनिल. अनिल है. अजय. देयर इज अजय, विजय, कैलाश एंड मनीष. तो उनको वो फर्नीचर लेके जाना है. now how they will take as per their profit sharing ratio? तो 2880 को 2:3 रेशो में डिवाइड करो. क्या रेशो है उन लोग का? 2:3. तो 2880 को 2:3 में डिवाइड करो. क्या आ रहा है? 2880 को 2:3 में डिवाइड करो. क्या अमाउंट आ रहा है? what amount are you getting for the furniture? 14,976 मिला. एंड दूसरा 13,104 मिला. आर यू गेटिंग दिस अमाउंट? 14 2:6 sorry 2:3. 2/5
3/5 में हमने 2880 को डिवाइड किया. सेम वे, what is the value of furniture of this one K&M? It is 21,840 and दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं. तो 21,840 को इक्वली डिवाइड करो. 21,840 को इक्वली डिवाइड करो. क्या आ रहा है? इक्वली डिवाइड करो. व्हाट यू आर गेटिंग? 21,840 divide equally 21,840 divide by 2. It is coming some 10,920. 10,920 correct na? 21,840 divide by 2 किया तो this answer I am getting. Are you also getting the same? So now what we will do, इसका opposite effect देना पड़ेगा. By का opposite to realization account 14,876, 13,104, 10,920, 10,920 सारा डिवाइड कर दिया. अब कोई लाइबिलिटी है जो नया फर्म लेके नहीं जा रहे? There is no such liability which new firm is not taking over. So हमें क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करना है. रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करो. दोनों साइड का टोटल निकालो. 74,100 प्लस 35,100 प्लस 2,08,000 प्लस 1,84,730 प्लस 10,920 plus 10,920. How much are you getting? 5,23,770 आ रहे. 5,23,770. Same way, 1,02,700 plus 50,700 plus 2,47,000 plus 2,63,822 plus 14,976 plus 13,104 सबको ऐड करने पे 6,92,302 आ रहे. नाउ सी द डेबिट साइड का टोटल क्या है. असेट का टोटल देखेंगे तो समझेगा. इट इज 6,21,400 and 4,75,800. So we can see that our credit side is heavy. Credit side heavy है. 6,92,302 and 5,23,770. तो जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दिस इज व्हाट? दिस इज प्रॉफिट. दिस इज नोन एज प्रॉफिट. सो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? अजय, विजय, कैलाश एंड मनीष, इनको ये प्रॉफिट मिलेगा. लेकिन ये प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड आउट करो. क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 6,92,304 माइनस डेबिट्स असेट साइड का ये टोटल क्या है? 6,21,400. 6,21,400. तो फर्स्ट साइड का प्रॉफिट मुझे मिला. फर्स्ट इसका प्रॉफिट मुझे मिला 70,902. तो प्रॉफिट आई हैव गॉट 70,902. दिस इज ऑफ द Ajay and Vijay. Same way we will have to see what is the total of balance sheet, क्योंकि हमने पूरा का पूरा टोटल ही लिया है, कुछ भी मिस आउट नहीं किया. तो 475,800 किससे माइनस करना है? व्हाट इज द K&M का टोटल? माइनस 5,23,770. हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला 47,970. 47,970. Getting it? 47,970.
अभी डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, रेशो है यहाँ पे 7902 डिवाइड इनटू 2/3 ना, 2/5 ना, 2:3 का रेशो है, 2/5 इसको डिवाइड करना है। एंड व्हाट इज द रेशो फॉर दिस वन, फॉर विजय वही प्रॉफिट को 3/2:3 का रेशो है। सेम वे इन दोनों का तो इक्वली डिवाइड करना है बिकॉज इक्वल रेशो है, डिवाइड बाय 2, 47970 डिवाइड बाय 2। सो आंसर दिया है रेशमा, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? 28,361 आ रहे, 28,361 एंड यहाँ पे आ रहा है 42,541, 42,541। गेटिंग दिस शाहीन? इसके बाद यूज योर कैलसी, हाँ एवरीवन कैलसी यूज करो। 23,985, 23,985, are you getting this answers? देखो यही आंसर आ रहे, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे 2 का ऑपोजिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आ रहा है? 28,361, 42,541, 23,985, 23,985 हो गया सब। अभी क्या करना है, इसको बंद करना है, हमें क्या करना है, ये अकाउंट को बंद करना है। तो ये अकाउंट को बंद करते वक्त यू हैव टू सी व्हाट टोटल यू आर गेटिंग। सो लेट मी राइट द टोटल, टोटल करो 99,385, इधर का टोटल आ रहा है 1,07,185, इधर का आ रहा है 1,49,141 एंड फर्स्ट कॉलम का आ रहा है 142,761। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस आंसर। 142,761, 149, 141। मैंने क्या किया, ऐड किया है सबको। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट में भी वही टोटल लिखा 99,385। सो अब हमें जो यहाँ पे बैलेंस मिलेगा वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन का पार्टनर्स कैपिटल में, एंड पार्टनर्स कैपिटल का विल गो टू न्यू फॉर्म अकाउंट बैलेंस, न्यू फॉर्म अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सो क्या बैलेंस आ रहा है, माइनस करो व्हाट यू आर गेटिंग, 1,27,785। सेम वे इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, 1,36,037 एंड इसका आंसर क्या आ रहा है, वन इसका आंसर आ रहा है 95,647 एंड इसका आंसर आ रहा है माइनस करके 89,083, 89,083।
83 नहीं, ये लगता है ऐसा आंसर गलत है। क्या आंसर आ रहे तुम लोग को? ये भी रॉन्ग है ना? क्या आंसर आ रहे? 1,07,185 minus 10920. Answer is 96,265. And this one is 99,385 minus 1,09,020. That is 88,465. Correct? Now is it correct? So ये भी हो गया। इसके बाद क्या करना है? न्यू फॉर्म में ट्रांसफर करना है। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन लोग हैं? ए, वी, के एंड एम। कितना अमाउंट आ रहा है? 1,27,885। दूसरा क्या आ रहा है? 1,36,037। एंड नेक्स्ट क्या आ रहा है? 96,265। एंड लास्ट आ रहा है 88,465। इसको जब टैली करेंगे ना, व्हेन वी विल टैली दिस, हमें आंसर आएगा 2,63,822। इधर भी आएगा 2,63,822। एंड यहाँ पे 1,84,730। और यहाँ पे भी दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 1,84,730। इसके साथ न्यू फॉर्म टैली हो गया। लेकिन अभी हमें ना ये सम में एक एडिशनल है। ये सम में व्हाट इज एडिशनल? दे से इन द न्यू फॉर्म ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर न्यू कैपिटल अकाउंट। तो न्यू कैपिटल अकाउंट का न्यू कैपिटल हैज बीन गिवन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे बाई बैलेंस, नया फर्म का बैलेंस। ये ध्यान में रखो, दिस इज ओल्ड कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे था, ये सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। पर ये जो है ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो इसमें बाई बैलेंस बॉट डाउन क्या रहेगा? बाई बैलेंस बॉट डाउन करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो ऊपर ये अमाउंट मिला है ना, वॉट एवर वी हैव गॉट हियर, 227,785। विजय का कितना बैलेंस है? 136,037। कैलाश का कितना है? 96,265। एंड मनीष का कितना मिला? 88,465। ये बैलेंस लिखना है। इसके बाद यहाँ पे हमें, अगर तुम क्वेश्चन देखो तो न्यू कैपिटल दिया है, न्यू कैपिटल दिया है, टू बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। एंड टू बैलेंस कैरीड डाउन में गो टू द क्वेश्चन, see they have given the new capital 9,36,000। न्यू कैपिटल इज 9,36,000। उसको कैसे डिवाइड करना है? 3/10, 2/10, 3/10 एंड 2/10 में। तो वैसे इसको डिवाइड करो 9,36,000। तो चाहिए तो वी विल राइट इन द वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। एंड वर्किंग नोट में 9,36,000 इंटू 3/10 करो। क्या आ रहा है? 3/10 कितना आ रहा है? डिवाइड करो 3/10 कितना आ रहा है? हाउ मच अमाउंट आर यू गेटिंग? 9,36,000, 9,36,000 into 3 divided by 10. Are you getting 2,80,000?
800, 2,80,800. सेम वे हमें क्या करना है, 9,36,000 इंटू 2/10, सॉरी, इंटू 2/10. सो 2/10 करो, इंटू 2/10 मिल रहा है 1,87,200. सो तीनों पार्टनर्स का दिस ओनली हैज बीन गिवन. एक का कितना दिया है, 3/10, 2/10, 3/10, 2/10. अजय का 3/10, विजय का 2/10 बराबर. अजय का 3, विजय का 2, कैलाश का 3, मनीष का 2. सो हमें अमाउंट तो मिल गया, क्या है वो डिवाइड करने पे. सो लेट अस गो टू द न्यू कैपिटल. व्हाट अमाउंट हैव वी गेट, we have got 2,80,800 for Ajay, and we have got 1,87,200 for Vijay. कैलाश का भी 3/10 है, 3/10 मतलब 2,80,800. एंड मनीष का 2/10 है, 2/10 मतलब 1,87,200. हमें तीनों का नया कैपिटल मिल गया, मतलब तीनों को कितना कैपिटल लाना चाहिए ये मिल गया. अब देखो टैली करो, इधर आया तो लिखेंगे, इधर बैलेंस आया तो लिखेंगे बाई कैश, इधर आया तो लिखेंगे बाई कैश बैंक, इधर बैलेंस आया तो लिखेंगे टू कैश बैंक. मीन्स कोई भी डिफरेंस रहेगा दैट विल बी एडजस्टेड इन कैश. तो ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है. यहाँ पे भी अगर बैलेंस आया तो लिखेंगे बाई कैश बैंक. सो नाउ लेट अस सी किधर बैलेंस आ रहे, कौन सा साइड इज हैवी, 2 लाख. ये पहला वाला तो दिस वन इज हैवी, 280,800. पहले वाले का 2,80,800 इज हैवी. So difference निकालो, how much you are getting? Please give the answer. 2,80,800 minus 1,27,785. It is coming 1,53,015. सेम वे यहाँ पे भी देखा तो यही साइड हैवी है, 87,200. सबका वी कैन सी दैट द डेबिट इज हैवी. सब में हमने देखा डेबिट हैवी है, किसका भी क्रेडिट हैवी ऐसा नहीं है, सबका डेबिट इज ओनली हैवी. हर साइड का वी सॉ दैट द डेबिट इज हैवी. सो व्हाट आई विल डू, सेम विल कम, सबका सेम विल कम. मतलब यहाँ पे कुछ बैलेंस है ही नहीं, किसका भी डेबिट साइड हैवी ही नहीं है, सबका ये साइड ही हैवी है. तो जो डिफरेंस आ रहा है कैश का वो बताओ, कैश का क्या डिफरेंस आ रहा है. It is coming how much, 51,163. and यहाँ पे what is coming, 2,80,000, 2,80,800 माइनस 96,265. हमें मिल रहा है 1,84,535. हो गया, shit. कितना आ रहा है, 1,84, 1,84,535. मेरी क्या हो रहा है, 1,84,, में तुम लोग ने लिखा उसको ही कॉपी कर देती हूँ. 1,84,, 1,84,535. और लास्ट का क्या आ रहा है, लास्ट का क्या मिल रहा है,
लास्ट साइड का टोटल क्या मिल रहा है? 1 मिनट, आई एम नॉट एबल टू गो। लास्ट का क्या है बताओ? मनीष का was 88, $88,465, वो माइनस किया तो कितना आ रहा है? 98, 98,735, करेक्ट? 98,735, सॉरी, 98,735 है या 335 है? 375। कौन सा आंसर करेक्ट है? 187,200 minus 88,465, it is 735, 98,735, ये हो गया। इसका मतलब सी, ये जो भी बैलेंस है ये बाई कैश बैंक है, मतलब ये यहाँ से कैश बैंक के रिसीट साइड में आएगा। मतलब जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनका जो बिजनेस में बैलेंस था वो पहले से जो बिजनेस में कैपिटल था वो कम था। एंड सी द न्यू कैपिटल, सी द न्यू कैपिटल, द न्यू कैपिटल अमाउंट इज बिगर। अजय का ऑलरेडी बिजनेस में था 1,27,785 एंड नाउ उसके बिजनेस में होना चाहिए न्यू कैपिटल 2,80,800, मतलब उसको बिजनेस में ज्यादा पैसा लाना है। तो ये जो बाई कैश बैंक है, जितना भी कम पैसा था पहले से एडिशनल पैसा, ऑल द पार्टनर्स हैज ब्रॉट फ्रॉम देयर होम। मतलब क्या है इसका? ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल वाज दिस अमाउंट, बैलेंस बॉट डाउन, न्यू इज दिस वन। ये जितना भी डिफरेंस है सारे के सारे पार्टनर ने बिजनेस में लेके आया है फ्रॉम देयर होम। तो लास्ट में व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज कैपिटल। कैपिटल तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, नया कैपिटल अजय, आई विल राइट हियर, अजय, विजय, कैलाश, मनीष, what is the amount? 22, this one na, 2,800, 2,800 के बाद what is the next amount? 1,87,200, 2,80,800 और लास्ट वाले का 1,87,200, 1,87,200। कैपिटल लिख लिया। अब क्या लिखना है? सारे असेट्स किधर से मिलेंगे? पीसी में जाएंगे, विल गो टू द पीसी, हम सारे असेट्स कॉपी करेंगे, विल कॉपी ऑल द असेट्स। आई होप यू ऑल हैव गिवन मी करेक्ट आंसर। सारा असेट्स कॉपी किया। अब क्या करेंगे? असेट का जो अमाउंट है टोटल, पीसी का जो टोटल कॉलम है वो कॉपी किया। इसके बाद लाइबिलिटी, सी लाइबिलिटी में क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, पूरा लाइबिलिटी कॉपी किया।
एंड उसके बाद लाइबिलिटी का जो टोटल हमने निकाला है, कंट्रोल सी, हमने वो कॉपी किया। अब एक चीज बाकी है सिर्फ यहाँ पे, वो क्या है, आई विल टेल यू। कैश बैंक में पहले से यहाँ पे हमें टोटलिंग करना पड़ेगा। कैश बैंक में ओपन अ ब्रैकेट, ऑलरेडी 23,920 पीसी में मिला, और जितने भी पार्टनर्स है, एक ने 153,015 दिया, दूसरे ने 51163 दिया, तीसरे से दूसरे से 184,535 आया, तीसरे से 98,735 आए। सबको ऐड करके बताओ व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ कैश। मींस कैश हमें यहाँ पे आया है व्हेन वी हैव डिसाइडेड ऑन द न्यू कैपिटल। तो कुछ पार्टनर्स जिनका पैसा कम पड़ रहा था, घर से पैसा लेके आए हैं, तो 20, हाउ मच इट इज कमिंग, 23,920 प्लस 153,015। अजय लेके आया कैश 51,163। विजय लेके आया कैश 184,535। कैलाश 98,735 was bought by the last partner मनीष। तो पूरा मिला के हमारे पास 5,11,068 का कैश है। सो ये सबको ऐड करो, और अभी देखो हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है कैसे, अवर बैलेंस शीट इज टैलिंग और नॉट, एट व्हाट अमाउंट बैलेंस शीट का लाइबिलिटी का क्या अमाउंट आ रहा है। सी हियर 2,80,800 plus 1,87,200 plus 280,800 plus 1,87,200 plus 1,59,120 plus 85,800 plus 4,55,000. How much is it coming? 16,35,920. चेक वेदर यहाँ पे भी सेम अमाउंट आ रहा है। 1,01,400 प्लस 2,37,120 प्लस 3,43,200 plus 1,98,432 plus 1,85,380 plus 59,020 plus 511,368. It is coming same 1,16,35,920. With this our sum is over.